کبھی آپ نے آسمان کو تکتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی ہے، یا شاید سجدے میں سر رکھ کر آپ نے اللہ سے کچھ نہ کہا ہو، بس دل میں خاموشی سی ہو، مگر ایسا لگا ہو کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے۔ اگر کبھی زندگی کے ان خاموش لمحوں میں آپ نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیا ہو، یا خود کو تنہا محسوس کرتے ہوئے کسی انجانے سکون نے آپ کو چھو لیا ہو، تو رک جائیے۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف اشارے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اللہ اپنی خاص رحمت میں لینا چاہتا ہے، انہی ہی یہ نصیب ہوتے ہیں، اور جن کا ذکر وہ اپنے عرش کے قریب فرشتوں میں کرتا ہے۔ پہلا اشارہ وہ ہوتا ہے جب دل کا درد کسی انسان سے بیان نہ کر سکو۔ کبھی ایسا وقت آیا ہو جب آپ کا دل ٹوٹا ہو لیکن زبان خاموش ہو، لوگوں نے پوچھا ہو کیا ہوا، اور آپ نے صرف کچھ نہیں کہہ کر آنکھیں چرا لی ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کا بوجھ انسانوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف جانے لگتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو دنیا کی مخلوق سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ بعض وقت آدمی دوسروں کے سامنے اپنے آنسو بھی نہیں بہاتا، بس چپ چاپ اللہ سے بات کرتا ہے، اور اللہ بھی فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نے سب کچھ برداشت کیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ یہ خاموش آنسو آسمان کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ ترمذی میں ہے کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں آنسو بہاتا ہے اور بس یا اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو زمین پر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، مگر آسمان پر اللہ اس کے دل کی صدا سنتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ بندہ خاص نظر میں آ چکا ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جو ٹوٹے دل کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ذکر اب زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب گناہ کے بعد دل بے چین ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ یا اللہ میں یہ کیسے کر بیٹھا، پھر فوراً وضو کیا ہو، یا دل ہی دل میں توبہ کی ہو اور آنکھوں سے چند خاموش آنسو نکلے ہوں، تو یقین رکھیں یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کا دل چن لیا ہے۔ کیونکہ سب لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ فوراً توبہ کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی خاص روشنی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ اندرونی جنگ، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی رحمت کا اشارہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی گناہ کے بعد یہ سب محسوس کیا ہے تو خوش ہو جائیے، آپ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے فخر سے یاد کیا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ انسٹاگرام یا یوٹیوب پر کچھ اور دیکھ رہے تھے، مگر اچانک ایسی ویڈیو کھل گئی جو آپ کے دل پر اثر کر گئی، یا کسی دوست نے بغیر کسی خاص وجہ کے قرآن کی آیت والا میسج بھیج دیا، تو یاد رکھیں یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم اکثر اللہ کی نشانیوں کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کیونکہ ہم بہت شور میں گم ہو چکے ہوتے ہیں، مگر اگر آپ نے آج کی باتوں میں اپنی زندگی کی جھلک دیکھی ہو تو یقین جانیے اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی سا لگتا ہے؟ فون کی اسکرین پر ہر چیز چل رہی ہے مگر دل میں ایک خلش ہے، باہر سے سب کچھ ٹھیک ہے مگر اندر جیسے کچھ ٹوٹا ہوا ہو۔ کبھی کبھار رات کے کسی خاموش لمحے میں کوئی بات دل میں گھومتی ہے اور ہم بے اختیار یا اللہ کہہ کر آنسو پونچھ لیتے ہیں۔ ایسے لمحے، ایسے احساسات عام نہیں ہوتے، یہ وہ اشارے ہوتے ہیں جن سے رب بتاتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تمہیں سن رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے دو ایسے مزید اشاروں کی جو ان خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں جنہیں اللہ عرش پر یاد کرتا ہے۔ تیسرا اشارہ تب ہوتا ہے جب تمہیں بغیر کسی وجہ کے عبادت میں دل لگنے لگے۔ کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں بنا کسی وجہ کے نماز میں سکون محسوس ہو، کوئی تمہیں کہے بغیر تم نے قرآن کھول لیا ہو، ذکر کرتے ہوئے دل بھر آئے ہو، یا سجدے میں وقت گزر جائے اور تمہیں اٹھنے کی جلدی نہ ہو، تو یہ عام بات نہیں،
ये रूह को छू जाने वाला लम्हा होता है। ये इशारा है कि अल्लाह आपको अपनी कुर्बत दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में ईमान की मिठास डाल देता है। एक हदीस में आता है कि जब बंदा सजदे में रोता है तो फरिश्ते फौरन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ऐ रब, तेरा बंदा तो सिर्फ रो रहा है, कुछ मांग नहीं रहा। अल्लाह जवाब देता है, ये रोया हुआ ही मांगने से बढ़कर है। अब मैं खुद जानता हूं इसे क्या देना है। और याद रखें, ये मिठास दुनिया की किसी चीज से नहीं आती। ये वो मोहब्बत है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। ईमान, इबादत और तिलावत की शिद्दत, ये सब दिल के बुलंद होने की निशानी है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये वो मकाम है जहां अर्श के करीब फरिश्ते आपकी जिक्र सुन रहे होते हैं। चौथा इशारा, जब आप किसी गुनाह से रुक जाएं। कभी ऐसा लम्हा आया हो कि गुनाह करने का मौका था लेकिन दिल ने कहा नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, और आपने अपने नफ्स को रोक लिया। चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो, किसी पर गुस्सा ना निकालना, किसी की गीबत से बचना या नजर झुका लेना। ये वो लम्हे होते हैं जब आपका नफ्स आपके काबू में आ जाता है। तो ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत का इंतजाम खुद कर लिया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते में कोशिश करेगा, मैं उसके लिए अपने रास्ते खोल दूंगा। और जब इंसान गुनाह से बचने के लिए अपने जज्बात को कुर्बान करता है तो अल्लाह उसके लिए अपने अर्श के करीब मकाम लिख देता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो, मेरे बंदे ने मेरे खौफ की वजह से गुनाह छोड़ दिया। ये निशान अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए लोगों का होता है। ये वो मकाम है जहां बंदे का जिक्र जमीन से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी वो लम्हे आए हों जब आपने दिल से अल्लाह को याद किया हो, या किसी गुनाह से खुद को रोका हो, या इबादत में सुकून पाया हो, तो रुक जाएं, आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, अर्श के पास फरिश्तों की एक महफिल है और वहां आपका नाम लिया जा रहा है। कैसा लगता है ये जानकर कि आपका जिक्र जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों की बुलंदियों पर हो रहा है। कभी कभी दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर ऐसी जगह चलें जहां सिर्फ खामोशी हो, सिर्फ अल्लाह हो और कोई सवाल न हो, बस सुकून हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यही खामोशी, यही तन्हाई कभी कभार अल्लाह की तरफ से बुलाने वाले लम्हात होते हैं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को दुनिया के शोर से निकालकर खामोशी और तन्हाई में अपने करीब बुलाता है। और ये भी एक इशारा होता है कि अल्लाह आपको खास मकाम दे रहा है। पांचवा इशारा, जब तुम्हें दुनिया की रौनकें बेजार लगने लगी। कभी ऐसा हुआ कि वही लिबास, वही खाना, वही सोशल मीडिया, वही हंसी मजाक, सब कुछ वही है, लेकिन अब मजा नहीं आता। जहां पहले दिल लगता था, अब वहां खालीपन है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अब अल्लाह तुम्हें किसी और मकाम की तरफ बुला रहा है। दुनिया की रंगीनी से दिल का हट जाना अल्लाह की तरफ से आने वाली पहली कशिश होती है। ये वो लम्हा है जब रूह को रूहानी ग़िज़ा चाहिए होती है, जिक्र, इबादत, कुरान और वो सब लम्हे जहां अल्लाह याद आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनके दिलों में सुकून नाजिल करता है। और याद रखो, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। अगर तुमने कभी इस तब्दीली को महसूस किया है तो ये दुनिया से थक जाने की नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से बुलाने का इशारा है। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान समझ जाता है बस अब दुनिया की नहीं, सिर्फ मेरे रब की चाहत है। छठा इशारा, जब तुम्हारी दुआएं खुद तुम्हें रुला दें। कभी ऐसा हुआ कि सजदे में दुआ करते करते अल्फाज साथ छोड़ जाएं, जबान बंद हो जाए, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहें और ऐसा लगे कि अल्लाह बिल्कुल करीब है, बहुत करीब, जैसे आपकी धड़कनें सुन रहा हो। ये लम्हात दुनिया के किसी जुमले से बयान नहीं किए जा सकते। ये वो कैफियत है जहां बंदा रब से नहीं, रब बंदे से बात करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। जब कोई बंदा दुआ करते करते रोने लगे
और उसके अल्फाज से ज्यादा उसकी खामोशी बोले तो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, या रब, ये बंदा कुछ मांग नहीं रहा, बस रो रहा है। तो अल्लाह फरमाता है कि ये मांगने से भी आगे बढ़ चुका है। अब मैं खुद जानता हूं उसे क्या देना है। ये वो इशारा है जो सिर्फ उन दिल वो ही मिलते हैं जिनका ताल्लुक जमीन से नहीं बल्कि आसमान के रब से जुड़ा होता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक गुजरगाह है। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम यहाँ चुने जाने आए हैं। और जब अल्लाह किसी को चुनता है तो दिल में इशारा डाल देता है। जब तुम्हें दूसरे के दर्द में अपना दर्द महसूस होने लगे, कभी किसी के गम को देखकर तुम्हारी आंखें नम हो, कभी किसी का दुख ऐसा लगे जैसे वो तुम्हारा अपना हो, तो समझ जाओ ये आम एहसास नहीं है। ये रूह का नर्म होना, दिल का बेदार होना और रब के नूर से भर जाना है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे पर रहम नहीं करता जब तक वो अपने बंदों पर रहम ना करे। और रहम दिल के किसी कोने में नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत से जुड़े हुए दिल में पैदा होता है। अगर आप में ये एहसास जाग गया है तो आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने जिक्र के लायक समझा है। फरिश्ते अर्श के साए में आपका नाम लेकर कहते हैं, ये वो बंदा है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। अगर आपका दिल फिर कहे कि या अल्लाह, मुझे अब तेरी ही तरफ लौटना है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से कबूलियत की खबर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर आप इन इशारों में खुद को पहचानते हैं तो रोजाना एक आदत बना ले। सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट के लिए दिल से अल्लाह का नाम लें और अपने हर काम की नीयत सिर्फ उसकी रजा के लिए करें। इंशाअल्लाह ये छोटे कदम आपको बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। सोचें, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है? माल, शोहरत, सुकून नहीं, असल नेमत है अल्लाह का जिक्र। और असल करम है अल्लाह का याद किया जाना। जो आंसू तुमने बहाए, जो सजदे किए, जो खामोश दुआएं की, वो सब अर्श के करीब महफूज हैं। ऐ मेरे रब, अगर ये वीडियो किसी के दिल को तेरे करीब ले आए तो उसे माफ फरमा दे। अगर किसी ने रोते हुए या अल्लाह कहा तो उसके रोने को कबूल कर ले। और जो बंदा इन इशारों में खुद को पहचान रहा है, या अल्लाह, उसे अपने इन